So hello students, welcome back once again to the session of Accounting for Managerial Decision on online Shine app. So now we are to the next and the final topic of your Accounting for Managerial Decision subject, that is cash flow statement. Talking about this particular chapter, I would first give you a briefing on what is this chapter all about. So this chapter mainly talks about the cash inflow and outflow in a company or in an organization in terms or in regards to business. ठीक है, कितना कैश आया, उसमें से कितना गया, नेट प्रॉफिट में कितना ऐड हुआ और फाइनली कैश बैलेंस कितना रहा. ठीक है, ये हम इस पर्टिकुलर सम में चेक करते हैं, विच इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. To start with it, the very first thing I would like to tell you, it has a lengthy format. The sum is divided into two formats. Okay, one is the cash from operations, the cash from operating activity that you can see here in my solution, and the second is cash flow statement itself. The sum which you can see, 2 साल का डेटा दिया रहेगा. You are getting to see here the normal balance sheet, right? उसमें 2017 एंड 18 के आपको अमाउंट्स दिख रहे हैं. ठीक है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिख रहा है. वो एडजस्टमेंट्स रिलेट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सबको, किसी को भी हो सकता है. आई विल लेट यू नो इन दिस सम व्हाट आर द टू फॉर्मेट्स. वन इज कैश from operations or cash from the operating activity, that is the first format you can see, and the final amount, cash from operating activity which is generated, gets carried forward to the cash flow statement. Cash from operations ka last amount becomes the first part for cash flow statement, and there is where we start with cash flow statement sum. So this was just a brief introduction, 2 minutes introduction. Now I would like to highlight a very important point. कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी सम आता है, बट मेनी कॉलेजेस पुट इट एज एन ऑप्शनल क्वेश्चन इन एग्जाम. ठीक है, बिकॉज इट्स अ लेंथी सम, स्लाइटली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स जो हमने अब तक देखा. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, ट्रेंड, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, रेशियो, वर्किंग कैपिटल, मोर और लेस दे आर वेरी इजी. मैंने सबके एमसीक्यू शेयर किए हैं, मैंने सबके सम शेयर किए, सारे चैप्टर्स सारे वीडियोज में शेयर किए. कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शंस में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड फॉर द टफ पेपर एज वेल. सो अ सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट सम एंड फॉर्मेट फॉर यू ऑल टू मेक योर अंडरस्टैंड this particular topic as well very well. So here is the question that you can see. Now what is the format? I will help you know while solving this particular sum. So now let's first interpret the question in simple and short way. As you can see in the question, in liability side you have share capital, profit and loss account balance for 2 years, general reserve, debentures, loans. ठीक है, the long term liabilities are here. Then starts with your current liabilities, which are creditors, proposed dividend, provision for tax, and the total amount. Now on the asset side that you can see, fixed assets are there, intangible asset, goodwill, then fixed assets which are tangible, land and building, plant and machinery, furniture, fixture. Then starts the current assets or debtors, bank balance, and investments at the with the fixed assets. Our point is to start with cash from operating activity. Cash from operating activity, the starting point that we focus on is net income from profit and loss account. So as you can see, the profit and loss account, the balance in the question you can see 30,000 in the first year and 35,000 in the next year. मतलब हमने 5,000 का extra profit कमाया है. So the opening balance comes as net profit from profit and loss account or net income from P&L account 5,000. Starting point of your sum. Then you come to add all non-cash or non-operating expenses. Why? Because normally non-operating expenses हम minus कर देते और cash flow statement में हम ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करके हम इक्वल नज़र से उनको देखते हैं. इक्वल नज़र और पर्सपेक्टिव बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मली हम वर्टिकल पीएनएल, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में जो करते थे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते थे, यहाँ पे हम वो सारे एंट्रीज का उल्टा करेंगे. क्यों? हमने उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी की है. ठीक है,
कि एज पर अकाउंटिंग रूल हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, बट यहाँ पे सिर्फ हम कैश से लेना देना रखेंगे. वॉट एवर इज हैपनिंग थ्रू कैश वी विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन. तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस भी तो कैश में ही हुआ होगा, तो हम इधर उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे अकॉर्डिंगली. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी, depreciation on furniture, building, plant and machinery, ठीक, 10% to be provided on opening balance. So opening balance of furniture, plant and machinery, land and building that you can see in the question is 32,400, 1,13,400 and furniture का जीरो बैलेंस दिख रहा है हमें. फर्नीचर का हम ढूंढ के निकालेंगे, कैसे मैं आपको बताऊंगा, बट जब इन तीनों का हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं 10% ओपनिंग बैलेंस पे, तब हमें अमाउंट आता है 37,850. फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 40,500. ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा? अगर आप एडजस्टमेंट्स में नीचे देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, फर्नीचर में भी 10% डेप्रिसिएशन लिया गया, तब भी वो जाके 40,500 हुआ होगा नेक्स्ट ईयर में, है ना, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. तो इस साल कितना रहा होगा? रिवर्स जाके इफ 40,500 इज 90%, तो 100 कितना? तो आपको 45,000 मिलेगा. ठीक है, 45,000 में से 10% डेप्रीसिएशन स्लैश ऑफ किया तो 40,500 हो गया, 4,500 माइनस हुआ होगा. तो वो 45,000 ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए होगा. और उस पे देन प्लांट एंड मशीनरी पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे कंबाइन करके 10% डेप्रीसिएशन आया होगा, 37,850 आया है. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड. तो ये सारे जो हम अमाउंट लेते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1800 लिया है. आप देखोगे तो टैक्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस दिया. टैक्स पेड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सम में, नहीं तो हम उसको कंसिडर करते एडजस्टमेंट में. ठीक है, प्रपोज डिविडेंड इफ यू सी 16,200 वी हैव टेकन द क्लोजिंग बैलेंस दैट बिकॉज दैट इज meant that it was proposed and paid in that particular year. Amount transferred to general reserve. So if you look at the question, 10,500 is opening balance of general reserve and 19,000 is closing. Minus करके we can see that 8,500 का difference है, that is the amount transferred to general reserve. आप हर एक सम में ऐसा ही करोगे, general reserve का difference लेके you will add it here. ठीक है, goodwill का opening balance एंड क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके डिफरेंस जो आता है वो हमने यहाँ लिखा है 9,000. सो यू कैन चेक विद द अमाउंट्स. 13,950 माइनस 4,950 यू गेट 9,000. द टोटल कम्स टू 73,350. ऊपर का नेट इनकम हमने ऐड किया एंड वी गेट इट एज 78,350. ओके, नाउ लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि हमने इसको ऐड किया होगा, राइट, एज पर इनकम स्टेटमेंट. नाउ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी रिवर्स इट. ठीक है, सो गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में लेस कर देंगे. ठीक है, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था. ठीक है, जो हमने तभी ऐड किया होगा तो वो अभी माइनस हो जाएगा. कैश फ्लो में हम रिवर्स जाते हैं, माइनस करके वी गेट 76,350. देन दिस इज द फॉर्मेट. हम ऐड करते हैं कुछ चीज़ों को, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. ठीक है, वी ऐड देम. तो अगर कोई भी करंट एसेट में डिक्रीज हुआ है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द सेकेंड ईयर, ठीक है, या करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे. एंड कौन सा अमाउंट हम लेस करेंगे इसमें से, फॉर्मेट में से अगर कोई इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है तो सन्ड्री डेटर्स इफ यू कैन सी, ऊपर तो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ जो हमें ऐड करना था, बट अभी सन्ड्री डेटर्स इफ यू सी द अमाउंट हैज इंक्रीज. तो इंक्रीज इन करंट एसेट हम लेस करें. सुनने में आपको उल्टा लग रहा है बिकॉज करंट एसेट्स तो कंपनी के लिए अच्छा है, बट यहाँ पे थिंग्स गो रिवर्स, स्लाइड उल्टा जाता है बिकॉज हमने इनके साथ पहले कोई और इफेक्ट किया है. ठीक है, नॉर्मल इफेक्ट, बट दिस सम डील्स विद कैश ओनली एंड देयरफॉर वी आर रिवर्सिंग द एंट्रीज इन दिस स्टेटमेंट. एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को भी लेस करेंगे. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ है. ठीक है, फाइनली द अमाउंट वी गेट इट एज 47,330, जो हमने 76,350 से लेस किया. And finally we get 29,020 as the amount here. Okay, now this amount will be transferred to cash flow statement and that will be the starting point of the sum. So watch the next video to understand the second part of this particular format. It's going to be interesting. I'm making short videos for you all so that you can first go through this video perfectly, understand cash from operating activity and then go to the cash flow statement. All the best, stay tuned. Watch the next video to complete this sum.